Hello students, today we'll discuss about the achievements of agrarian reforms which are widely recognized as the Green Revolution. In our previous video we have discussed the three types of reforms which were introduced in the agriculture sector. Now we'll discuss about the achievements or the gains which we have experienced or observed in our agriculture sector. So India's agriculture sector, which was mainly backward and stagnant initially, now started developing, and the reason was green revolution or the reforms which have been introduced. So due to the green revolution or the agrarian reforms, Indian agriculture sector started developing from backward and stagnant. Mainly the agrarian reforms were divided into two phases, so we start discussing each phase separately. The phase 1 or the first phase, which was from mid 1960s to 1970s, mid 1970s, as we all know that the green revolution started or introduced in mid 1960s, that is introduced in 1966 or during the period of 1966-67. Now we have divided this phase into two parts for observation. The scope of green revolution, the scope was divided into the area wise, and the crops wise. Initially, or in its first phase, the area covered by the green revolution was limited. It was confined up to some states only. These are Punjab, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu. We can say that the effects or impacts of green revolution were mainly seen in these states only across India. And the crops it covered, only the two main or major food crops were covered by the green revolution, or mainly the effects of green revolution were seen in these two crops only. These are wheat and rice. So we can say कि फर्स्ट फेज जो कि मिड 1960s से मिड 1970s तक का फेज था, उसमें जो थे कुछ ही स्टेट्स जो है ग्रीन रेवोल्यूशन ने कवर किए थे, या कुछ ही स्टेट्स में है ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट या इम्प्लीमेंट किया गया था. और ये स्टेट्स थे पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. और कुछ ही क्रॉप्स में इम्प्लीमेंट किए गए थे इनके जो इंस्ट्रूमेंट्स थे या फिर जो मेथड्स थे ग्रीन रेवोल्यूशन के, वो व्हीट एंड राइस मेनली टू मेजर फूड क्रॉप्स के लिए ही यूज़ किए गए थे. The second phase is mid 1970s to mid 1980s. इस सेकेंड फेज में जो एरिया कवर किया गया था, दैट मीन्स कि अक्रॉस होल इंडिया और द होल कंट्री वी हैव इम्प्लीमेंटेड द मेथड्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, एंड ऑलमोस्ट ऑल द क्रॉप्स वर कवर्ड अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन. मतलब सारे जो भी मेथड्स हम ग्रीन रेवोल्यूशन में अडॉप्ट किए थे, वो सभी क्रॉप्स के ऊपर हमने इम्प्लीमेंट करने शुरू कर दिए थे. So moving towards the gains of green revolution or agrarian reforms, the very first gain or achievement we have experienced is the spurt in crop productivity. Spurt means a sudden increase or rise in the production of crops, कि हमने जो अपनी crops थी उनके productivity या production में जो है एकदम से increase या उछाल देखने को मिला. तो mainly दो crops की हम बात कर रहे हैं, wheat and rice. तो अगर हम compare करें टू टाइम पीरियड्स के बीच में, तो हम देखते हैं कि wheat, अगर हम wheat को लें तो 1951 में जो वीट का प्रोडक्शन था दैट वाज 660 किलोग्राम्स पर हेक्टेयर. यहाँ पे पीएच जो है वो पर हेक्टेयर के लिए यूज़ किया गया है. इन 1951 द प्रोडक्शन ऑफ वीट वाज 660 kilograms per hectare, while in 2018-19 it rose to 3,408 kilograms per hectare. Okay, near about more than 5 times जो था हमारा आउटपुट जो था प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया था वीट का ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन. तो हम कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिले प्रोडक्टिविटी में या फिर प्रोडक्शन में. इसी तरीके से राइस का प्रोडक्शन भी जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ था. एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट हम सभी क्रॉप्स का प्रोडक्शन जो है यहाँ पे कंपेयर करके दिखाएं. अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए हम जो है एक एग्जांपल ले सकते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज सब्सटेंशियल राइज इन एकरेज. एकरेज जो थी वो इंक्रीज हो गई थी. अब यहाँ पे एकरेज क्या है? एकरेज को हम दूसरी तरीके से कह सकते हैं द एरिया अंडर कल्टिवेशन. Now what is meant by area under cultivation? It means more crops are being grown at the same piece of land. मतलब जो लैंड एरिया था एग्रीकल्चर के लिए या फिर एग्रीकल्चरल लैंड थी वो तो लिमिटेड थी, वो फिक्स थी, उसको हमने इंक्रीज नहीं किया. बट उसी लैंड एरिया को अब हम ज़्यादा यूज़ करने लग गए थे. मतलब उसी लैंड एरिया के ऊपर हम एक से ज़्यादा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करने लग गए. एंड हाउ डिड इट हैपन? It happened due to, or it is made possible due to HYV seeds and chemical fertilizers which were mainly widely used in or during green revolution. What did they do?
HYV सीड्स की वजह से जो था टाइम लैग बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग वो रिड्यूस हो गया था, डिक्रीज हो गया था। मतलब जब हम फसल को उगाते हैं, बीज उगाते हैं और जब वो पक के तैयार होती है मीन्स हार्वेस्टिंग, उसका टाइम पीरियड जो है, टाइम लैग था, वो कम हो गया था, जिस वजह से हमारी जो लैंड थी वो अवेलेबल हो पाती किसी दूसरी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। अगर जितना ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड रहेगा या टाइम लैग रहेगा सोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन का, तो दूसरे क्रॉप के ग्रो करने के लिए लैंड जो है वो अवेलेबल नहीं होगी। तो HYV सीड्स की वजह से जो फसल है जल्दी पकने लग गई या फिर उनका जो हार्वेस्टिंग टाइम है वो कम हो गया। एंड ड्यू टू केमिकल फर्टिलाइजर्स द नीड ऑफ फॉलोइंग इज रिड्यूस्ड। फॉलोइंग क्या है? फॉलोइंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें कि हम लैंड को कुछ टाइम पीरियड के लिए खाली छोड़ देते हैं। दैट मीन्स दो क्रॉप सीजन्स के बीच में जब हम लैंड को खाली छोड़ देते हैं, लैंड एरिया को खाली छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, क्यों करते हैं ऐसा? सो दैट द लैंड कैन रीगेन इट्स फर्टिलिटी और इट्स मिनरल्स। हम इसलिए खाली छोड़ देते हैं ताकि जो लैंड है अपनी फर्टिलिटी को वापस से रीगेन कर सके, जो मिनरल्स लूज़ कर लिए या लूज़ हो गए हैं उनको वापस से रीगेन कर ले। इसलिए हम खेत को जो है कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ देते हैं। एंड दिस प्रैक्टिस इज नोन एज फॉलोइंग। ओके, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स हम एज अ सप्लीमेंट यूज़ करने लग गए, तो दैट मीन्स जो सॉइल की फर्टिलिटी थी वो केमिकल फर्टिलाइजर्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देते थे, या फिर लैंड में या सॉइल में जिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती थी, कमी होती थी, उसको हम एज अ सप्लीमेंट केमिकल फर्टिलाइजर्स से रिमूव कर देते थे। तो लैंड को खाली छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी उसके फर्टिलिटी या फिर मिनरल्स को रीगेन करने के लिए, क्योंकि उनको हम एज अ सप्लीमेंट यूज़ करने लग गए थे। इस वजह से जो है टोटल आउटपुट जो थी फॉर द ईयर वो इंक्रीज हो गई, क्योंकि अब हम अपनी लैंड पे ज़्यादा से उसी लैंड एरिया पे ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप उगा सकते थे। दैट्स वाई द एकरेज और द एरिया अंडर कल्टिवेशन हैज़ बीन इंक्रीज्ड। The next is shift from subsistence farming। जैसे कि हमें पता है कि टोटल आउटपुट जो थी वो ग्रीन रेवोल्यूशंस या फिर जो एग्रेरियन रिफॉर्म्स थी उनकी वजह से इंक्रीज हो गई थी। तो आउटपुट इंक्रीज हो जाने की वजह से फार्मर्स आर लेफ्ट विद द सरप्लस आउटपुट, और उस सरप्लस आउटपुट को जो है मार्केट में बेचने लगे। नाउ व्हाट इज सरप्लस? सरप्लस ओवर में डिफाइन करना पड़े तो हम कैसे करेंगे? द सरप्लस आउटपुट और द मार्केटेबल सरप्लस इज द टोटल आउटपुट माइनस सेल्फ कंजम्पशन। जितना भी क्रॉप या फिर टोटल आउटपुट प्रोड्यूस किया है एक फार्मर ने, उसमें से अगर वो अपने कंजम्पशन के लिए जितना उसे चाहिए वो निकाल दे, तो जो बाकी बचा हुआ लेफ्ट ओवर क्वांटिटी ऑफ ग्रेन और क्रॉप इज कॉल्ड मार्केटेबल सरप्लस। टोटल आउटपुट जितना भी हुआ, सपोज 100 जो क्विंटल्स हैं या 50 क्विंटल्स अगर प्रोड्यूस किया एक फार्मर ने, और 10 क्विंटल्स उसने सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख लिया है, तो 50 क्विंटल में से 10 क्विंटल्स अगर हम निकाल दें तो 40 क्विंटल्स हमारे पास क्या बच गया? सरप्लस, मार्केटेबल सरप्लस जिसको हम कहेंगे। अब इस सरप्लस का वो क्या करेगा? क्योंकि सरप्लस है, ये ज़्यादा है उसकी कंजम्पशन रिक्वायरमेंट से, तो इस सरप्लस को वो मार्केट में बेच देगा। एंड due to such practices, farmers started earning more and more. That's why their outlook has been shifted from subsistence to commercial farming. इसलिए farmers का जो outlook था, perception था farming को लेके, वो change हो गया। अब उसे subsistence outlook नहीं मान रहे थे, मतलब सिर्फ गुजारे के लिए उसको यूज़ नहीं कर रहे थे खेती को as an occupation, बट उन्होंने एक business activity के रूप में या फॉर्म में उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि मार्केटेबल सरप्लस इंक्रीज हो रहा था। आउटपुट इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली मार्केटेबल सरप्लस भी इंक्रीज होगी, क्योंकि कंजम्पशन रिक्वायरमेंट उतनी ही रहेगी। फैमिली मेंबर्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं इतना फ्रीक्वेंटली, तो कंजम्पशन रिक्वायरमेंट इंक्रीज नहीं हो रही, लेकिन आउटपुट इंक्रीज होने की वजह से जो टोटल जो रिजल्ट था वो मार्केटेबल सरप्लस इंक्रीज होने का था। तो मार्केटेबल सरप्लस इंक्रीज होने लगी तो फार्मर्स की इनकम भी इंक्रीज हुई। दैट्स वाई देयर आउटलुक हैज़ बीन शिफ्टेड फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल फार्मिंग। द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफ अचीवमेंट इज सेल्फ सफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। जैसे कि आउटपुट इंक्रीज हुआ तो फार्मर्स जो है अपनी कंजम्पशन रिक्वायरमेंट खुद ब खुद फुलफिल करने लगे। That's why we can say that as an increase in production of food grains or output has been increased, our consumption requirement is met by on our own, or we were able to fulfill our consumption requirement by ourselves due to increase in acreage or output। एज अ रिजल्ट जो बफर स्टॉक गवर्नमेंट मेंटेन करने लगी थी वो भी इंक्रीज होने लगा। दैट मीन्स जो कंटिजेंट या इमरजेंट सिचुएशंस में गवर्नमेंट या फिर
उन स्टेट्स में जहाँ पे प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन कम है, उन स्टेट्स के लिए गवर्नमेंट जो है प्रोक्योर कर लेती है फार्मर्स से जो ग्रेन्स, और उनको स्टोर करके रख लेती है कि इमरजेंसी में या फिर उन स्टेट्स को प्रोवाइड कर देगी जहाँ पे प्रोडक्शन कम है या डेफिशिएंसी ऑफ फूड ग्रेन्स है। वो स्टॉक या वो बफर स्टॉक है वो भी इंक्रीज़ होने लगा क्योंकि आउटपुट इंक्रीज़ हो रही थी। एंड दूसरी तरफ हमारे इम्पोर्ट्स जो थे फूड ग्रेन्स के वो रिड्यूस हो रहे थे क्योंकि हम अपनी कंजम्पशन रिक्वायरमेंट खुद ब खुद फुलफिल कर पा रहे थे। तो ड्यू टू सेल्फ सफिशिएंसी इम्पोर्ट्स हैज़ बीन रिड्यूस्ड एंड बफर स्टॉक जो था वो मेंटेन करने लगी गवर्नमेंट डेफिशिएंसी या फिर डेफिशिएंट सिचुएशंस में यूज़ करने के लिए। तो इस तरीके से ये कुछ अचीवमेंट्स या गेन्स थे जो ग्रीन रेवोल्यूशन के ड्यूरिंग जो हमने ऑब्जर्व किए। अपार्ट फ्रॉम दीज अचीवमेंट्स और गेन्स, some dark sides or a darker side is also there of green revolution. What was that? It was डिफाइंड एज कि जो प्रोडक्शन था वो हालांकि इंक्रीज हुआ, बट ये सिर्फ कुछ ही क्रॉप्स तक ही लिमिटेड था या कुछ ही स्टेट्स तक लिमिटेड था हम कह सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले पॉइंट्स में देखा कि इनिशियली और ड्यूरिंग फर्स्ट फेज जो ग्रीन रेवोल्यूशन ने कवर किए जो एरिया वो काफ़ी कम था और क्रॉप्स भी कुछ कम ही कवर की थी, मेनली फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन ही इंक्रीज हुआ था। सो वी कैन से दैट ये जो आउटपुट थी वो इंक्रीज तो हुई लेकिन वो लिमिटेड थी, कन्फाइंड टू सम आउटपुट। अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन ऑल्सो से दैट कि हम अपनी कंट्री में इसको देख रहे थे कि आउटपुट इंक्रीज हुई है, लेकिन जब हम कंपेयर करें दूसरे स्टेट्स के साथ, तो if we compare the output or increase in output of our country, it was very low or very less than other developed countries. Okay, तो हम मान सकते हैं कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन थे इसके हमें सेंट% रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले। ओके, सो हियर आर द लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। फर्स्ट, लिमिटेड क्रॉप्स, only limited crops, mainly food grains were covered by the green revolution। जो methods थे green revolution के HYV seeds या जो chemical fertilizers थे, insecticides, pesticides, ये mainly कुछ food grains को produce करने या उनका production increase करने के लिए ही use किए गए। कुछ जो cash crops थी, commercial crops थी, mainly jute and indigo, उनके या cotton है, उनके production में इतना ज़्यादा सब जो frequent rise या फिर increment हमें देखने को नहीं मिला। That's why we can say that the effects or impacts of green revolution were only confined to cash crops, commercial crops, the impacts or the good impacts of green revolution were only confined to food crops or food grains. Cash crops or commercial crops were did not show certain rise in their output. The next one is uneven spread। as we know that जो ग्रीन रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट्स थे वो कुछ ही स्टेट्स में हमें देखने को मिले, थ्रू आउट द कंट्री उसके मीनिंगफुल रिजल्ट्स नहीं मिले। मतलब इक्वल इम्प्रूवमेंट जो था या आउटपुट में, एग्रीकल्चरल आउटपुट में, वो देखने को नहीं मिला थ्रू आउट द कंट्री। Mainly Punjab, Haryana, Maharashtra and Tamil Nadu were the states who have experienced or observed the meaningful results of green revolution। एंड सम स्टेट्स लाइक ईस्टर्न यूपी, बिहार एंड ओडिशा जो थे वो इतने ज़्यादा इम्पेक्ट से अब मीनिंगफुल रिजल्ट्स हमें ग्रीन रेवोल्यूशन को देखने को नहीं मिले, या फिर हम कह सकते हैं दीज स्टेट्स रिमेन्ड अनटच्ड विद द इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। यहाँ पे इतने ज़्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट्स फार्मर्स को नहीं मिले। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन मीन्स अगर हम यहाँ पे अपने फार्मर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, मेनली लार्ज एंड स्मॉल फार्मर्स, तो ओनली लार्ज फार्मर्स जो थे वही मीनिंगफुल रिजल्ट्स या गेनफुल रिजल्ट्स या ओनली लार्ज फार्मर्स गेट benefited with the methods of green revolution, as the inputs which are implemented or which were introduced in green revolution, HYV seeds and chemical fertilizers, were very expensive. So the small farmers and marginal farmers were not able to buy these inputs because their income was very low। तो हम कह सकते हैं कि जो लार्ज फार्मर्स हैं उन्हीं को ही ग्रीन रेवोल्यूशन के बेनिफिट्स हुए, क्योंकि जो इनपुट्स थे ग्रीन रेवोल्यूशन में जो इंट्रोड्यूस किए गए थे, HYV सीड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। तो सिर्फ लार्ज फार्मर्स ही उनको अफोर्ड कर सकते थे क्योंकि उनकी इनकम हाई थी। जो स्मॉल एंड जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी इनकम लो होने की वजह से वो उन इनपुट्स को नहीं परचेज कर पाते, जिस वजह से उनकी आउटपुट या उनकी क्रॉप की आउटपुट इंक्रीज नहीं हुई। सो वी कैन से दैट only limited population of the farming or farming population, or only very less farmers or small number of farmers get benefited by the green revolution। The next point is economic divide। As the previous point explained very well, that the two parts or the two categories of farmers were not equally get benefited with the green revolution, so we can say that the gulf or the gap between poor and rich farmers has been risen over the times
जैसे कि हम कह सकते हैं कि पुअर एंड रिच जो था उसका गैप इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि जो लार्ज और स्मॉल फार्मर्स थे दोनों को इक्वल बेनिफिट्स नहीं हुए। तो लार्ज फार्मर्स वर गेटिंग रिचर एंड स्मॉल फार्मर्स वर बिकमिंग पुअर, क्योंकि उनको या तो इनपुट्स परचेज करने के लिए लोन लेना पड़ता, क्योंकि उनके पास उतनी इनकम नहीं थी और इनपुट्स महंगे थे, तो उन्हें उधार लेना पड़ता या लोन लेना पड़ता, जिसकी वजह से इंडेटेडनेस की प्रॉब्लम जो थी वो इंक्रीज होती जा रही थी। दैट्स वाई वी कैन से दैट जो अनइक्वल या अनइवन स्प्रेड था ग्रीन रेवोल्यूशन के बेनिफिट्स का, उसने इकोनॉमिक गैप अराइज कर दिया बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज फार्मर्स, एंड दैट इकोनॉमिक गैप वाज नोन एज द गैप और द गल्फ ऑफ पुअर एंड रिच. And very important point we can introduce, we can also involved in this point, that is suicidal deaths among farmers were being also increasing over the years. जैसे कि हम महाराष्ट्र में आज भी देखते हैं कि कुछ ऐसे रीजन्स हैं महाराष्ट्र में जहाँ पे ओवर द ईयर्स सुसाइडल डेथ जो है वो इंक्रीज होती जा रही है फार्मर्स की, या हो रही है ड्यू टू इंडेटेडनेस, क्योंकि उनके पास उतने ज़्यादा इनकम नहीं है कि वो इनपुट्स जो है परचेज कर सकें या कैपिटल अरेंजमेंट कर सके, तो उन्हें लोन लेना पड़ रहा है। एंड लोन्स की जो बर्डन है वो ओवर द ईयर्स ड्यू टू इंटरेस्ट चार्जेस इंक्रीज हो जाती है, that's why they attempt to suicides. So these were the limitations or the drawbacks or dark side of the green revolution, कि achievements के साथ साथ इसके कुछ negative impacts भी हमें देखने को मिल रहे हैं साथ साथ. So apart from the benefits, if we focus on the limitations, these limitations, a question arises. The question is, does India need another green revolution? And the obvious answer will be yes. क्या इंडिया को एक दूसरी ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत है? क्योंकि हम कह सकते हैं कि इनिशियल फेजेस में, सेकेंड फेज में जो कि मिड 1970s से मिड 80s तक चला, तो 90s तक हम कह सकते हैं कि उसके आउटपुट के जो इंक्रीमेंट था वो हमें देखने को मिला, लेकिन ग्रेजुअली जो है हमारी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस होती जा रही है ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड यूजेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, जिस वजह से आउटपुट भी डिक्रीज होती जा रही है, फार्म आउटपुट भी डिक्रीज होती जा रही है, और हमारे जो बफर स्टॉक्स हैं वो कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रहे हैं। हम अपनी जो कंजम्पशन रिक्वायरमेंट है वापस से उसे फुलफिल करने में अनेबल होते जा रहे हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं वी नीड अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन। जैसे कि हमने कंपेयर किया था लास्ट में कि हमारे जो प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड्स हैं अदर डेवलप्ड कंट्रीज से काफ़ी लो हैं, दैट्स वाई ड्यू टू this uncertain productivity or production, our buffer stocks are becoming very low. We are not able to fulfill our consumption requirement or increasing consumption requirement again, and farmers are looking agriculture as अनप्रॉफिटेबल ऑक्यूपेशन। फार्मर्स को जो है अनप्रॉफिटेबल ऑक्यूपेशन ये लग रहा है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि ड्यू टू इंक्रीज्ड और प्रोलॉन्ग्ड यूसेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स द सॉइल इज लूजिंग इट्स फर्टिलिटी, एज अ रिजल्ट द टोटल आउटपुट इज गेटिंग रिड्यूस्ड ओवर द ईयर्स, जिस वजह से फार्मर्स की आउटपुट डिक्रीज होती जा रही है, उनके प्रॉफिट्स या उनकी इनकम भी कम होती जा रही है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज लॉन वेवर्स, or we can say the frequent loan waivers are increasing the burden on government. What is loan waivers? The farmers, mainly small and marginal farmers, are taking loans from the banks, mainly cooperative societies and regional rural banks, for their agriculture purposes, and due to uncertain productivity or production, they are unable, most of the farmers are unable to pay off or repay that debt or loan. That's why and to lure the farmers, government frequently, due to political pressures, government frequently waives off the loans. गवर्नमेंट जो है पॉलिटिकल प्रेशर्स की वजह से या अदर सर्टेन रीजंस की वजह से टाइम टू टाइम जो है लोन माफ़ करती आ रही है फार्मर्स का, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की ट्रेजरी या गवर्नमेंट के ख़जाने के ऊपर बर्डन बढ़ रहा है। दैट्स वाई वी कैन से दैट इन सभी रीजंस की वजह से इंडिया स्टिल नीड्स अ ग्रीन रेवोल्यूशन विच मे revive the agriculture sector again,